I'm Professor Vayam Khan, and this is our part 10 of our network model series. And this is the final part of this network model series. And today we will be covering the crashing the network part. So we will be studying how to crash the network, how to reduce the project duration of a network. And before proceeding to our uh, crashing the network part, I'll request you to subscribe to my channel and like this video, share this video, and please study. Okay, so we'll begin with our crashing the network. So in crashing or compressing the network, what actually are we going to do? Okay, we have seen that there are number of activities given to us. These activities are dependent on each other. They have some dependency relationship. Then we connect these activities on the basis of their dependency relationship with each other. Uh, and these activities are connected by using the arrows and nodes. Okay. And out of these activities, we get a network, a complete network, that is your project network. Okay. And this project network has some project duration. That project duration is nothing but the total time required to complete this whole project, to complete this whole activity through a critical path. Okay, through a critical path. So we find a critical path using the activity duration, and we say that this network is taking this amount of duration. Okay, now this duration is based upon some resources required to us for completion of this project. Okay, we need some resources. Okay, we need some resources to complete this whole project. Okay, these resources can be your labor, your machinery, your equipments. Okay, then some material regarding your manufacturing, or whatever the resources may be. So these resources are needed to complete or to execute the whole project. Okay, now in crashing or in compressing the network, we deal with reducing this project duration. We want to reduce the project duration. Suppose our project duration is 21 days. Okay, so these 21 days will cost some amount to us, that will be called as project cost. This 20 for this completion of this project in 21 days, we will need some resources, and these resources are going to cost us. Okay, so this cost is nothing but your project cost. Okay, now while completing this project in 21 days, for example, we have taken 21 days, we will need some resources. Okay, but what if I increase the resources to reduce this project duration? Say if this whole project is done by say 5 people. Okay, we need 5 people to complete this project. What if I increase one more a person in this project? Okay, this may reduce the project duration because a lot of activity could be taken care by him. Okay, now what if I increase the equipments? What if I increase the equipments, or what if I increase some you can say material? Can it be reduced? Okay, so what is the our ultimate aim in crashing is that we want to reduce the project duration. हमको क्या करना है? हमको प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन यहाँ पर कम करना है. अभी कम कैसा होगा? बाय इंक्रीजिंग द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड. आपने एप्टीट्यूड के अंदर आपने कई बार वो क्वेश्चन छुड़ाया होगा. एक दीवार है जो 4 लोग मिलकर बनाते हैं, या 5 लोग मिलकर बनाते हैं, या एक घर है जो 5 लोग मिलकर बनाते हैं. अगर यही काम 8 लोगों को दे दिया जाए तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, काम करने वाले हैं. हम क्या करने वाले हैं कि जो लगने वाले रिसोर्स है इस प्रोजेक्ट को, वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे,
ताकि जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, मतलब कम हो जाए। अब इससे फायदा क्या होने वाला है? बेशक जो लगने वाले रिसोर्सेस है उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, बट जो ड्यूरेशन कम होगा उससे हमारा कुछ अमाउंट का कॉस्ट भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो हमको क्या करना है, दोनों चीजों को इस तरीके से बैलेंस करना है कि हमारा ड्यूरेशन भी कम हो जाए और हमको लगने वाली कॉस्ट भी कम हो जाए। ओके, तो अगर ऐसा हम कर पाते हैं, ऐसा अगर हम अचीव कर पाते हैं, तो हम प्रोजेक्ट को कम दिन में कंप्लीट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट, बिना कॉस्ट को इंक्रीज किए। सो हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट को यहाँ पर कंप्रेस करना है। जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये दो तरीके की रहती है। इट द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप। One is direct cost, which is directly involved in this project. Now, while reducing this project duration by increasing the resources, this direct cost is not affected. Okay, this direct cost is not going to get affected. Whereas there is one more cost which is called as indirect cost, and this indirect cost will get affected by increasing the resources. Okay, by increasing the resources. Okay, now which are the different direct costs? The amount for resources directly involved in the execution of the project, like material, your labor cost, your equipment cost, these are the examples of your direct cost. And which are the different indirect costs indirectly involved in project? These costs are indirectly involved in the project. For example, there is a fixed indirect cost like licensing fees. If you need a license, it will require some fee. You have to pay some taxes, you have to get insured your business or your equipments or your people who are working on your project. आपको इंश्योरेंस का लगेगा खर्चा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ेगी। ये सभी फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। ओके, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होंगे। ये आपने 10 दिन के लिए अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो भी इतना लगेगा, 21 दिन के लिए करते हैं तो भी इतना लगेगा। दिस इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। अब हमारा फर्क कहाँ पर गिरने वाला है, जो कि वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन टाइम टेकन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। जैसे सुपरविजन है, इंटरेस्ट है, आप अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं, ओके, दिन ब दिन आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ मनी लोन पे लिया है उस आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और वो जो है अमाउंट उसके ऊपर कुछ आपको लोन है या इंटरेस्ट देना है, बराबर है। तो आपका दिन ब दिन इंटरेस्ट क्या होने वाला है, बढ़ते जाएगा। तो अगर आप ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट करते हैं तो उतना ही कम इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पे करना पड़ेगा, बराबर है। कुछ डिप्रिसिएशन है तो ये डिप्रिसिएशन भी बढ़ता जाएगा। तो ये सब चीजें बढ़ने वाली है जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा। तो हम बेहतर है कि हम प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले और इन सब चीजों को क्या करें, कम कर दे। तो अगर ये चीजें कम हो जाती है तो हमारी ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट की क्या होगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया। हम देखेंगे ये थ्योरी पार्ट से ज्यादा हमको न्यूमेरिकल पार्ट पर ध्यान देना है। अम, जो भी प्रोजेक्ट है ये कैसा क्रैश किया जाता है उसके लिए ये प्रोसीजर दी है। दिस इज द प्रोसीजर फॉर क्रैशिंग द नेटवर्क। ओके, नाउ सबसे पहले ऑब्टेन क्रिटिकल पाथ। सबसे पहले तो नेटवर्क बना लो भाई, उसके बाद में उसके अंदर क्रिटिकल पाथ ढूंढो। आपको पता है नेटवर्क कैसा बनाना है, आपको पता है क्रिटिकल पाथ कैसे निकालना है, क्योंकि अब तक हमने काफी प्रैक्टिस कर लिए हैं। ओके, अब ये किसके ऊपर से निकालेंगे हम, नॉर्मल एस्टिमेटेड मीन टाइम्स, जो आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दिया है उसके बेसिस पर हम ये दोनों चीजें करने वाले हैं। इसके बाद में हमको क्या करना है, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट टाइम स्लोप निकालना है। हमको क्या करना है, कॉस्ट टाइम स्लोप निकालना है। अब ये कॉस्ट टाइम स्लोप क्या रहता है ये मैं आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, बट हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप ये निकालना है। ओके, सभी एक्टिविटीज के लिए, जो भी क्रिटिकल पाथ पे रहेगी या जो नहीं रहेगी उसके लिए भी हम ये करने वाले हैं। ओके, और इसके बाद ये कॉस्ट टाइम स्लोप निकालने के बाद में हमको क्या करना है, क्रिटिकल एक्टिविटीज को मार्क करना है। एक टेबल रहेगा, उस टेबल में ये कॉस्ट टाइम स्लोप हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और इसके अंदर हमको क्या करना है, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है उनको क्या करना है, मार्क। ठीक है, उसको हम मार्क करेंगे। और क्रैशिंग को शुरुआत करना है
ऐसे एक्टिविटी से जिसका कॉस्ट टाइम स्लोप सबसे कम है, विच इज हैविंग द लीस्ट कॉस्ट टाइम स्लोप। ऐसे एक्टिविटी से हमको क्या करना है, हमारे क्रैशिंग को शुरुआत करना है। जैसे आपने उस एक्टिविटी को क्रैश की है, जो भी ड्यूरेशन से आप क्रैश करेंगे, अब क्रैशिंग करना मतलब क्या रहेगा कि जैसे कि एक एक्टिविटी है, इसको 5 दिन लगते हैं करने को नॉर्मली, ओके। आप क्रैशिंग से क्या कर सकते हैं, उसको 5 दिन से कम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। से उसकी क्रैशिंग पॉसिबल है 2 दिन से। 2 दिन से पॉसिबल है मतलब क्या, आप 2 दिन उसको पहले कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ दैट एक्टिविटी फ्रॉम 5 टू 3। 5 से 3 आप क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। 2 दिन से आप क्या कर सकते हैं, वो एक्टिविटी रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब 2 दिन कम हो जाएंगे। तो आपको उस एक्टिविटी को कितने दिन लगने वाले हैं, 3 डेज लगेंगे। तो ये है हमारा क्रैशिंग। ओके, नाउ ये क्रैशिंग होने के बाद में कंस्ट्रक्ट द न्यू क्रिटिकल पाथ आफ्टर क्रैशिंग ऑफ एन एक्टिविटी। जैसे आप एक्टिविटी क्रैश करेंगे, आपको क्या करना है, वापस से नेटवर्क बनाना है और उसके अंदर वापस से क्रिटिकल पाथ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब वापस से नेटवर्क बनाना है और क्रिटिकल पाथ क्यों फाइंड आउट करना है, बिकॉज आपने कुछ एक्टिविटी का ड्यूरेशन क्या किया है, यहाँ पर रिड्यूस किया है। सो इट इज पॉसिबल दैट द पाथ और द क्रिटिकल पाथ हैज चेंज्ड। क्रिटिकल पाथ में भी चेंज हो चुका होगा, ओके। और क्या करना है, उसी के बेसिस पर हमको रिवाइज शेड्यूल एंड कॉस्ट निकालना है। और ये दोनों भी स्टेप्स हमको क्या करना है, रिपीट करना है जब तक सब के सब क्रैशिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, ओके। तो ये आपको ध्यान में रहने के लिए है, शॉर्ट में हम देखेंगे एक्चुअल में कैसा है। तो हम पहले देख लेते हैं कॉस्ट टाइम रिलेशनशिप क्या रहता है, या टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप क्या रहता है। देखो, ये कर्व है और ये कर्व प्लॉट किया है हमने एक्टिविटी कॉस्ट वर्सेस एक्टिविटी ड्यूरेशन पे। मतलब जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये एक्टिविटी का भी कॉस्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओके। ये टीसी रिप्रेजेंट करता है क्रैश टाइम, क्रैश टाइम। और ये टीएन रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल टाइम, जो नॉर्मल ड्यूरेशन लगने वाला है ना हमारे एक्टिविटी को, तो वो टाइम रिप्रेजेंट करता है। वेर एज ये सी एन रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल कॉस्ट, जो हमको नॉर्मली कॉस्ट लगेगी जब हम एक्टिविटी को नॉर्मल टाइम में कंप्लीट करेंगे तब। और ये है क्रैश कॉस्ट, ये है क्रैश कॉस्ट जो हमको लगेंगी जब हम एक्टिविटी को क्रैश करके कंप्लीट करेंगे, ओके। बराबर है ना, 5 से 3 जब एक्टिविटी आने वाली है तो उसको कुछ ना कुछ रिसोर्स बढ़ाने पड़ेंगे ना भाई, तो उसी वजह से कॉस्टिंग भी बढ़ेंगी। तो वो जो कॉस्ट हमको लगने वाली है एडिशनल रिसोर्स की, वो कॉस्ट है हमारी क्रैश कॉस्ट, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ड्यूरेशन है, जैसे जैसे आप क्रैशिंग करते जा रहे हैं, मतलब यू आर रिड्यूसिंग द टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पर आप टाइम ड्यूरेशन क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ओके। तो जैसे जैसे आप टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस कर रहे हैं, वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, क्रैश कॉस्ट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ओके। ये क्रैश कॉस्ट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब आपके एक्टिविटी की कॉस्ट क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। बट हमको ये कॉस्ट बढ़ने वाली है, बट हमको क्या चाहिए, एक ऐसा पॉइंट आएगा इस पूरे कर्व के ऊपर, ओके। इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जहां पर एक्टिविटी ड्यूरेशन भी कम रहेगा और आपका कॉस्ट भी क्या रहेगा, कम रहेगा, ओके। आपका कॉस्ट भी क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। तो वो पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे हमारे टेबल की मदद से, ओके। तो अब इसके ऊपर से हम टाइम कॉस्ट स्लोप या कॉस्ट टाइम स्लोप कैसे निकालते हैं, तो हम यूज करते हैं डेल्टा सी। डेल्टा सी मतलब क्या रहता है, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट। तो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट क्या है, सीसी, मतलब क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। एंड डेल्टा टी, ओके, डेल्टा टी में है नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, ओके। और इन दोनों का अगर हमने रेशियो ले ली तो हमको मिलता है कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट टाइम स्लोप बोलते हैं इसको, सिंपली हम क्या बोलेंगे इसको, कॉस्ट स्लोप, ओके। तो पूरा नाम है इसका कॉस्ट टाइम स्लोप। तो ये मिलता है हमको डेल्टा सी बाय डेल्टा टी की मदद से। ये कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। हमने जब तक अब तक जो टेबल्स देखे उसी तरीके से है। इसके साथ में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए जो लगने वाली अलग अलग कॉस्ट है, ये हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास में कुछ फॉर्मूले दिए हैं, ओके। तो ये हमने कॉस्ट स्लोप का देख लिया, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, वी हैव सीन इट।
ओके, नाउ अब हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट दो चीजों में बटा रहता है। दो चीजों में बटा रहने के बजाय मैं बोलूंगा तीन चीजों में रहता है। तो बेसिकली ये तो रहता है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसी आपको मिलती है? तो ये मिलती है हमको गिवन इनडायरेक्ट कॉस्ट से। हमारे प्रॉब्लम में एक इनडायरेक्ट कॉस्ट दी रहेगी, जैसे कि अगर आप क्रैश करते हैं तो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट 300 रुपये प्रतिदिन रहेगी, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट 400 रुपये पर डे रहेगी, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट 200 रुपये पर डे रहेगी या 100 रुपये पर डे रहेगी। ये हमको प्रॉब्लम के अंदर गिवन रहता है। ओके, सो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट इनटू हमारा टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जो क्रिटिकल पाथ से हमको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिल रहा है ना, वो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 10 दिन है और अगर हमारी कॉस्ट 100 रुपये है पर डे, तो 100 इंटू 10 मतलब 1000 हमारा क्या रहेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट रहेगा। प्लस इसके साथ जब आप क्रैशिंग करेंगे तो आपको इसके अंदर क्रैश कॉस्ट भी क्या करनी पड़ने वाली है, ऐड करना पड़ेगी। ओके, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, और वो क्रैश कॉस्ट कैसी मिलेगी? जैसे कि आपने अगर एक एक्टिविटी को एक दिन से क्रैश किया, एक्टिविटी को अगर आपने एक दिन से क्रैश किया, तो उस एक्टिविटी के लिए कुछ कॉस्ट टाइम स्लोप रहेगा, कॉस्ट स्लोप रहेगा। ओके, वो कॉस्ट स्लोप से क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कॉस्ट स्लोप अगर एक एक्टिविटी के लिए 200 रुपए है, तो ये 1 डे से अगर आप क्रैश करते हैं एक्टिविटी, तो 1 इंटू 200 मतलब आपको क्रैशिंग के लिए कितने दो लगने वाले हैं, 200 रुपये लगेंगे। ओके, वही अगर आप यही एक्टिविटी 4 दिन से क्रैश करते हैं, तो 400 इंटू 200 मतलब आपको कितने लगने वाले हैं, 800 रुपये लगने वाले हैं। पर वहां पर एक्टिविटी कितने दिन से क्रैश होगी, 4 दिन से। तो ये अलग अलग हमारा क्या है, कॉस्टिंग यहाँ पर दिया है। ओके, तो ये हम हमारे हर एक नेटवर्क के लिए क्या करते जाएंगे, इवेल्युएट करते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एग्जांपल। आपके सामने एक एग्जांपल दिया है, कुछ इस तरीके से आपको एक न्यूमेरिकल दिया रहेगा। इसमें आपको क्या क्या बोला है कि लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दी है, इसके लिए फॉर इरेक्टिंग अ कैंटीन, एक फैक्ट्री में कैंटीन बनाना है, उसके लिए आपको कुछ एक्टिविटी दी है। ओके, विथ अदर रिलेवेंट डिटेल्स, उसके अदर डिटेल्स भी दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी का कोड दिया है ABCDE। ओके, और उसका मीनिंग दिया है, मतलब पहले क्या करो, ले फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन डालो और बिल्ड वॉल्स, दीवारें खड़ी करो। उसके बाद दिया है टाइल रूफिंग, मतलब जो दीवारों जो छत है उस छत के ऊपर टाइल लगाओ। आपने वो लाल कलर की टाइल्स देखी होंगी छतों के ऊपर, उस प्रोसेस को बोलते हैं टाइल रूफिंग। ओके, जो जनरली हमारे को कोकन एरिया में या हिली एरिया में देखने मिलती है वो टाइल, वो रूफ्स। ओके, उसके बाद बोला है इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी, इंस्टॉल प्लम्बिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट वगैरह सब लगाओ, प्लम्बिंग मतलब पाइप वगैरह सब लगाओ, और आखिरी में क्या है, सभी सर्विसेज को कनेक्ट करो। ये ऐसी कुछ 5 एक्टिविटी हमको यहाँ पर दिया है। ओके, उसके आगे क्या बोला है, उसके आगे बोला है इसको लगने वाला ड्यूरेशन हमको दिया है और कॉस्ट दिया है। जैसे ये नॉर्मली अगर ये एक्टिविटी की जाए तो कितने दिन में कंप्लीट होगी, 5 दिन में, और इसको कॉस्ट कितना लगेगा, 3000 रुपए। ओके, उसी तरीके से ये दूसरी एक्टिविटी दी है, उसको नॉर्मली कितना लगेगा, 6 दिन लगेगा, और कितना खर्चा आएगा, 1200 रुपये। वही अगर आप इसको क्रैश करते हैं, वही अगर आप इसको क्रैश करते हैं, तो इसको ड्यूरेशन कितना लगेगा, 4। ओके, मतलब आप इस एक्टिविटी को एक दिन से क्या कर सकते हैं, क्रैश कर सकते हैं। 5 से 4 मतलब 5 - 4 मतलब आपको एक दिन क्या मिलेगा, क्रैशिंग के लिए मिलेगा। तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। पर यही 4 दिन में कंप्लीट करने के लिए आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी 4000 रुपए। मतलब आपको क्रैशिंग के लिए 4000 - 3000 मतलब 1000 रुपए ज्यादा जाने वाले हैं। ओके, 1000 रुपए आपकी क्रैशिंग में बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हमारे को कुछ कॉस्ट और ड्यूरेशन दिए हैं। ओके, आगे क्या बोला है, आगे कंडीशन दी है इनकी डिपेंडेंसी रिलेशनशिप की। क्या दिया है, जॉब ए मस्ट प्रीसीड ऑल अदर जॉब्स, ए मस्ट प्रीसीड ऑल अदर जॉब्स मतलब ए क्या है, सभी जॉब का सबसे पहला वाला जॉब है, मतलब दिस इज द इनिशियल जॉब, इनिशियल एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं आ सकती, ऐसा यहाँ पर हमको क्लियरली बताया है।
while job E must follow others। मतलब E एक्टिविटी क्या है? ये सबसे आखिरी वाली एक्टिविटी है। ए सबसे स्टार्ट की है और ई सबसे आखिरी की है। अब बाकियों के रिलेशन कैसे दिए हैं ये हम आगे देखते हैं। अब इसमें डायरेक्टली तो नहीं बोला है बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, ध्यान से हमको प्रॉब्लम को पढ़ना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जॉब्स कैन रन कॉन्करेंटली। ये दोनों जॉब इंडिविजुअली चलेंगे। कौन से? ए और ई। ये स्टार्ट का जॉब रहेगा और ये ई आखिरी वाला जॉब रहेगा। वेयर एज अपार्ट फ्रॉम दिस, जॉब्स कैन रन कॉन्करेंटली। मतलब ये बी, सी और ये डी, ये तीनों भी पैरेलल जॉब्स चल सकते हैं। ये जॉब कैसे चलेंगे? पैरेलल चलेंगे, कॉन्करेंटली। मतलब ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे और एक ही पॉइंट पर एंड होंगे। ओके, पर यहाँ पर हमको एक पॉइंट से और एक पॉइंट से स्टार्ट होना और एक पॉइंट से एंड होना, ऐसा पॉसिबल है क्या? कंडीशन नहीं है। इसके लिए हमको यहाँ पर मे बी डमी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ओके, सो ये पहला जॉब है, ये आखिरी वाला जॉब है, और इनके बीच में ये तीनों भी जॉब कैसे हैं? पैरेलल है। हमको क्या करने के लिए बोला है? ड्रॉ द नेटवर्क एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ। ड्रॉ करो नेटवर्क, फाइंड करो क्रिटिकल पाथ। ओके, ये रेगुलर चीज है। क्रैश द नेटवर्क फुल्ली टू फाइंड आउट मिनिमम ड्यूरेशन। मिनिमम ड्यूरेशन फाइंड आउट करने के लिए नेटवर्क क्या करो? क्रैश करो। इफ इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ₹300 पर डे। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी दिए हैं आपको? 300 रुपये पर दिन दिया है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको गिवन रहेगा, तो वो ये गिवन है, 300 पर डे दिया है। डिटरमाइन कॉस्ट टाइम ट्रेड ऑफ। टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ ये कैसा डिटरमाइन करना है, तो ये मैं आपको आखिरी में बताता हूँ। तो प्रॉब्लम हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये टेबल इस तरीके से बना लेते हैं और इसके अंदर कोड की जगह थोड़ा सा हम एक्टिविटी का नंबरिंग दे देते हैं। जैसे कि ये एक्टिविटी 1 to 2 है, ये 2 to 3 है, ये 2 to 5 है, ये 2 to 4 है, और ये आखिरी में 5 से 6 है। तो ये तो मैंने बाद में दिया है, ये आप टेबल में आप बाद में लिखो, बट पहले हमको टेबल सिर्फ इतना लिखना है। ये कॉलम, ये वाला सेकंड कॉलम, ये थर्ड फोर्थ कॉलम, ये फिफ्थ और सिक्स कॉलम, इतना ही टेबल हमको लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो नॉर्मल कॉस्ट है, इस नॉर्मल कॉस्ट का समेशन कर लेना है। इस नॉर्मल कॉस्ट का क्या करना है? समेशन, एडिशन। ये रहेगा हमारा टोटल नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट। जो मैंने आपको बोला ना कि नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहती है क्रैशिंग में भी, तो ये हमारी ये वो कांस्टेंट वाली वैल्यू है। ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू, ये 8000 है, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, इसके बाद आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लिख लेनी है उसकी। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगने वाली है, 300 रुपये पर डे लगेंगे। ओके, हमको इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब अगर ये प्रोजेक्ट 15 दिन में कंप्लीट होता है, तो 15 इंटू 300, मतलब 15 त्रिक 45, मतलब 4500 रुपये हमको क्या होने वाले हैं? इनडायरेक्टली लगेंगे। तो हमको ये 4500 क्या करना है? कम करते जाना है। ओके, अब इसके बाद हम टेबल में 3 और कॉलम ऐड करते हैं। वो है हमारा डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी का फॉर्मूला हमने देखा था, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। मतलब ये नॉर्मल टाइम में से इस क्रैश टाइम को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ लिखना है। ओके, टी एन माइनस टी सी। तो 5 - 4, यहाँ पर आ गया 1। इसका मतलब क्या रहेगा? ये एक्टिविटी एक दिन से क्रैश होगी, एक दिन इसको कम कर सकते हैं एक्टिविटी को। 6 - 2, मतलब ये कितना रहेगा? 4। तो इस एक्टिविटी को आप 4 दिन से कम कर सकते हैं, मतलब इस एक्टिविटी को आप 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, मतलब 4 दिन से रिड्यूस करेंगे। दिस इज द अमाउंट बाय विच यू आर गोइंग टू रिड्यूस द एक्टिविटी ड्यूरेशन। दिस इज 4 - 3। ये 4 - 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर 5 - 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और यहाँ पर 3 - 3 है, मतलब ये हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि ये एक्टिविटी किसी भी तरीके से क्रैश नहीं हो सकती। ओके, तो इसको क्रैश करने के बारे में हमको सोचना भी नहीं है। ये क्रैश होगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई भी चांस नहीं है। ये एक दिन से होगा, ये 4 दिन से कम हो जाएगी, ये एक दिन से कम हो जाएगी, ये 2 दिन से कम हो जाएगी। अब इनकी डेल्टा सी भी निकालना है। डेल्टा सी क्या है? आपका क्रैश कॉस्ट, जो कि ज्यादा वाला कॉस्ट है, क्रैश कॉस्ट माइनस आपका नॉर्मल कॉस्ट। ओके, तो 4000 माइनस 3000, 1000, 2000 माइनस 1200, 800, 1800 माइनस 1000, 800,
2000 माइनस 1200, ये हो गया 800, और ये 1600 माइनस 1600, ये हो गया 0। ओके, और हमको क्या करना है, इसका कॉस्ट टाइम स्लोप बनाना है। ये स्लोप है यहाँ पर, तो ये स्लोप कैसा बनाना है हमने, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो 1000 डिवाइडेड बाय 1, 1000 आ गया। 800 डिवाइडेड बाय 4, 200 आ गया। 800 डिवाइडेड बाय 1, 800 आ गया। 800 डिवाइडेड बाय 2, 400 आ गया। तो ये हमको मिल गया स्लोप, और यही स्लोप हमको लगेगा सभी एक्टिविटी के क्रैशिंग के वक्त। ओके, इसके लिए हमने क्या करी, ये टेबल में ही कैलकुलेट कर लिए। तो ये तीन चीजें आपको क्या करना है, एक नया टेबल बनाना है नेटवर्क बनाने के पहले, और उसके अंदर ही तीनों चीजें कंस्ट्रक्ट करना है। और यही सेम टेबल हम क्या करेंगे, हमारे पूरे प्रॉब्लम में, पूरे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। ओके ओके, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ऑप्टेन द नेटवर्क एंड क्रिटिकल पाथ। तो आपको क्रिटिकल पाथ और नेटवर्क बनाना है। तो पहले नेटवर्क कैसा बनेगा, तो हमको क्या बोला है, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी ई। तो ई जो है, ए जो है वो सबसे पहली एक्टिविटी है, वेर एज ई जो है वो सबसे आखिरी वाली एक्टिविटी है। तो ए मैंने पहले बना दी, बराबर है। सबसे इनिशियल एक्टिविटी 1 से शुरू हो रही है, 2 पर खत्म होगी, और आखिरी वाली एक्टिविटी में पहले बना रहा हूँ यहाँ पर। क्यों, तो ये हमको कंडीशन इस तरीके से दिया है। तो ई ये हमारी सबसे आखिरी वाली एक्टिविटी है, मतलब सभी एक्टिविटीज यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर खत्म होने वाली है। मतलब इसके स्टार्ट वाले नोड पर सभी आके खत्म होगी, और इसके एंड वाले नोड से सभी एक्टिविटी शुरू होगी। और वो एक्टिविटी कौन सी है, बी, सी और डी। तो ये तीनों भी एक्टिविटी हमको क्या बोला है, कॉन्करेंटली मतलब पैरेलली परफॉर्म हो सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज योर इवेंट नंबर 2। ए का एंड है, ए के एंड से बी भी शुरू हो गई, सी भी शुरू हो गई और डी भी शुरू हो गई, वेर एज वो कनेक्ट हो रही है यहाँ पर आकर, बराबर है। अब हमारा रूल क्या बताता है कि नो टू और मोर एक्टिविटीज कैन हैव सेम स्टार्ट पॉइंट एंड सेम एंड पॉइंट। सेम स्टार्ट पॉइंट नहीं होना चाहिए, सेम एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली वो एक सरी का ही है, मतलब ये तीनों भी एक्टिविटी एक साथ शुरू हो रही है और एक साथ खत्म हो रही है, लेकिन इनके स्टार्ट और एंड पॉइंट अलग अलग है, क्योंकि ये एक्टिविटी अलग अलग है। ओके, इसके लिए इसको एक ही पॉइंट पर हम नहीं दिखा सकते। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डमी की मदद से दिखाएंगे। तो कैसा दिखाएंगे, तो हम क्या करें, इस बी एक्टिविटी का एंड पॉइंट सेपरेट कर दिया, इस डी एक्टिविटी का एंड पॉइंट सेपरेट कर दिया। अब हमको क्या करना है, 3 से 5 और 4 से 5 को सिर्फ एक डमी की मदद से, एक एक डमी की मदद से क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो ये बन गया हमारा पूरा नेटवर्क। प्रैक्टिकली ये बी यहाँ पर ही एंड हो रही है, ये डी भी यहाँ पर एंड हो रही है, बट जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन में हमने क्या किया, उसके एंड पॉइंट्स को अलग कर दिया। आप चाहे तो इस डी को यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर डमी दिखा सकते हैं, और आप चाहे तो बी को यहाँ बना सकते हैं और यहाँ पर भी डमी दिखा सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। सिर्फ हमने यहाँ पर क्या किया, जो स्टार्ट पॉइंट से 3 एक्टिविटी के वो एक जगह रखे, वेर एज एंड पॉइंट्स हमने क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। तो आप चाहे तो अल्टरनेट भी कर सकते हैं, मतलब एंड पॉइंट एक जगह रखो, स्टार्ट पॉइंट को क्या करो, सेपरेट कर दो। ओके, अब इसके बाद हम लिखेंगे इनका ड्यूरेशन, इन एक्टिविटी का ड्यूरेशन। तो एक्टिविटी ए को नॉर्मली कितने लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं, और अगर उसको क्रैश करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। तो ये दोनों भी ड्यूरेशन हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो हम उसको कैसा लिखेंगे, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। 5 मतलब है आपका नॉर्मल ड्यूरेशन, और ये आपका क्रैश ड्यूरेशन। मतलब ये एक्टिविटी 5 से ज्यादा कितने ड्यूरेशन तक हम उसको खींच सकते हैं, कम कर सकते हैं, 4 तक। ओके, तो सिमिलरली फॉर बी, सी, डी एंड ई, बी सी डी और ई को भी हमने इसी तरीके से लिख लिया। ओके, ये इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन है और ये क्रैश ड्यूरेशन है। ओके, इसके आगे हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ ढूंढते हैं। तो क्रिटिकल पाथ ढूंढने के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन है, हमारे पास में ऑप्शन है कि हम तीनों भी पाथ लिख लें, इसमें जितने पाथ है वो लिख लो। तो यहाँ पर बेटर है यही वाली मेथड यूज करो, क्योंकि ये नेटवर्क छोटे रहते हैं और इसके अंदर आपको जल्द से जल्द पाथ मिल जाते हैं। तो कौन से पाथ है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 6। तो इतना लंबा पाथ यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक्टिविटीज लिखेंगे। सो एक्टिविटी ए, बी एंड ई, क्योंकि ये डमी है तो इसको कंसिडर नहीं करना है। ये ई मतलब ये रूट में है, बट इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। तो ये ए बी ई लिख लिया मैंने। अगर इस पाथ से आता हूं मैं, तो मेरा ड्यूरेशन कितना है,
इस 5 से अगर मैं आता हूँ तो 5 प्लस 6 11 प्लस 3, मतलब 14 डेज लगने वाले हैं। ओके, दूसरा पाथ है ए सी और ई, मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ। तो ए सी और ई, अगर मैं इस पाथ से आता हूँ तो मुझे कितना लगेगा, 5 प्लस अगला ड्यूरेशन 4, मतलब 9 प्लस 3, मतलब कितना, 12 डेज, 12 दिन लगेंगे। और वही अगर मैं इस पाथ से आता हूँ तो मुझे कितना लगेगा, 5 प्लस 3, मतलब कितना, 13 डेज। अब ये तीनों में सबसे ज्यादा किसका ड्यूरेशन है, जो पहला पाथ है ए बी ई उसका है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको क्रिटिकल पाथ बताएंगे, बिकॉज द लार्जेस्ट ड्यूरेशन वाला क्या रहता है, आपका क्रिटिकल पाथ रहता है। तो ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 6, मतलब ए बी एंड ई, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पाथ है। तो ये पहला हमने क्या कर लिया, चीज कंप्लीट कर ली। ओके, अब ये चीज कंप्लीट होने के बाद में हमको क्या करना है, इससे रिलेटेड कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही के यही उस नेटवर्क के बाजू में हम क्या करते जाएंगे, उसकी कॉस्ट लिख लेते जाएंगे। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस क्रैश कॉस्ट। क्योंकि अगर हम क्रैशिंग करते हैं तो वो कॉस्ट भी क्या होने वाली है, इसके अंदर ऐड हो। तो डायरेक्ट कॉस्ट कितना है आपका, 8,000। इनडायरेक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला है जो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है क्रिटिकल पाथ के लिए, वो मल्टीप्लाइड बाय गिवन इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, तो वो देखते हैं कितना आता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट है हमारा 8,000, इनडायरेक्ट कॉस्ट, योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 14 days into given indirect cost, this is your given indirect cost। तो कितना है, 14 into 3000, सॉरी 14 into 300, दैट इज योर 4200, ये है आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो 8,000 प्लस 4,200, और किसी भी तरीके का हमने यहाँ पर क्रैशिंग नहीं किया है, इसीलिए ये वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो हमारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, हम जब शुरू कर रहे हैं प्रोजेक्ट क्रैशिंग से पहले, कितना है, 12,200। तो हम चाहेंगे कि ये 12,200 से कम हो जाए। ओके, तो हमको ऐसा पॉइंट, कॉस्ट टाइम ट्रेड ऑफ रहेगा कि जहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये क्या हो गई है, कम हो गई हुई है। ओके, और ये बढ़ नहीं रही इसके आगे। ठीक है, अगर बढ़ती है तो वो हमारा लॉस होगा, तो वो क्रैशिंग हम नहीं करेंगे। तो चलो पहला हम क्रैशिंग करते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाल लिए। इसके बाद में हमको क्या करना है कि जो एक्टिविटीज है, अब यहाँ पर आपको हर स्लाइड में क्या रहेगा, ये टेबल नजर आएगा सामने वाला। हमको ये हर बार नहीं लिखना है, हमको ये सिर्फ टेबल एक बार लिखना है और इसके ऊपर ऑपरेशंस करने के हैं, उसी के ऊपर ऑपरेशन करना है। वेर एज जब भी आप क्रैशिंग करेंगे, जब भी आप क्रैश करने वाले नेटवर्क, तो आपको हर बार नेटवर्क क्या करना है, रीड्रॉ करना है, वापस से ड्रॉ करना है विथ न्यू क्रैश ड्यूरेशन। जो क्रैश ड्यूरेशन रहेगा, ये जो भी आपका एक्टिविटी का ड्यूरेशन हो जाएगा चेंज, तो चेंज वाले ड्यूरेशन से क्या करना है, आपको नया नेटवर्क बनाना है और फिर से क्या करना है, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। तो ये नेटवर्क बार बार बनेगा, ये टेबल सिर्फ एक बार बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोला है, स्टेप 2 हमारा है मार्क एक्टिविटीज विच कैन बी क्रैश। तो कौन सी एक्टिविटी क्रैश की जा सकती है जो क्रिटिकल पाथ में है, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो क्रिटिकल पाथ में है, एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी बी है और एक्टिविटी ई है। तो हम इसको क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ए बी और ई को हमको क्या करना है, मार्क करना है। तो ये मैंने मार्क कर दिया ए, इसके बाद मार्क किया बी और ये मार्क किया मैंने ई को। ओके, ओके, उसके बाद select the activity with least cost slope for crashing। जिसका सबसे कम स्लोप है, ऐसे एक्टिविटी को क्या करो, सेलेक्ट करो। किसके लिए, क्रैशिंग के लिए, फॉर क्रैशिंग, मतलब उस एक्टिविटी को क्या करना है, हमको क्रैश करना है। तो सबसे कम स्लोप किसका है, सबसे कम स्लोप तो ई का है, डैश है क्योंकि यहाँ पर, बट ये ई क्रैश हो सकती है क्या, नहीं। ओके, तो इसके लिए मैं ई को क्रैश नहीं करूंगा, ई के बजाय जो नेक्स्ट वाला एक्टिविटी इस सेलेक्टेड एक्टिविटीज में सबसे कम वैल्यू वाला स्लोप रखती है, ऐसे एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, क्रैश करेंगे। तो ए बी और ई में से तो ई तो गायब हो गई, कैंसिल हो गई। अब ए और बी में से जिसका स्लोप कम है उसको हम क्या करेंगे, क्रैश करेंगे। तो यहाँ पर ए का स्लोप है 1000,
वेयर एज बी का स्लोप है 200, तो हम क्या करने वाले हैं, इस बी एक्टिविटी को क्रैश करेंगे। क्रैश करेंगे मतलब अब इसको हम क्या करने वाले, रिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए मैंने इधर से मार्क किया, मतलब यहाँ से हम क्या करने वाले, एंटर। ओके, तो हमको क्या करना है, अब क्रैश करना है बी को। सिंस ई हमारे कुछ काम की नहीं है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ई को डायरेक्टली कट कर दे रहे हैं, क्रॉस ऑफ कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। जिसका भी क्रैशिंग कंप्लीट हो चुका है, ऐसे एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक लाइन से कट कर देते हैं ताकि वो आगे कंसिडरेशन में ना आए। ओके, तो अगला स्टेप है क्रैश एक्टिविटी बी बाय 1 डे ओनली। अब एक्टिविटी बी को क्या करना है, यहाँ पर हमको क्रैश करना है। क्रैश करना है मतलब क्या करना है, उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन हमको कम करना है। अब कम करना है मतलब क्या, कितने से कम किया जा सकता है, ये 6 है ओरिजिनल ड्यूरेशन, इसको क्रैश ड्यूरेशन कितना है, 2, मतलब आप 6 से 2 दिन पे ला सकते हो उस एक्टिविटी को। मतलब कितने दिन से आप क्रैश कर सकते हैं उसको, 4 दिन से क्रैश कर सकते हैं। कितने दिन से, 4 दिन से। बट हमको यहाँ पर हमारा कॉस्ट ट्रेड ऑफ पॉइंट ढूंढना है, जो कि कहीं पर भी हो सकता है। इसके लिए हम एक साथ 4 दिन से एक्टिविटी क्रैश नहीं करते, एक साथ हम बड़े नंबर से एक्टिविटी को क्रैश नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उस एक्टिविटी को हर बार एक एक दिन से ही क्रैश करेंगे। कितने दिन से, सिर्फ एक दिन क्या करना है, इसको क्रैश करना है। मतलब ये 6 से कितने दिन पे आ जाएंगे एक्टिविटी, 5 डेज पे आ जाएगी। और हमारा जो क्रैश ड्यूरेशन है वो एक दिन का रहेगा। और हमको जो स्लोप या जो क्रैश कॉस्ट है वो कितनी लगेगी, 200 रुपये लगेगी। अब ये क्यों करना है, क्योंकि अगर हमने एक साथ 4 दिन से क्रैश किया तो चांसेस है कि जो पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं वो पॉइंट हमसे क्या हो जाए, मिस हो जाए। इसके लिए जब भी आप एक्टिविटी क्रैश करेंगे, कोई भी एक्टिविटी रहने दो, कितनी भी एक्टिविटी एक साथ क्रैश करो, बट उसको सिर्फ और सिर्फ एक दिन से क्रैश करना है, बाय 1 डे ओनली। ओके, तो हम क्रैश करेंगे। जैसे ही हम इसको क्रैश करते हैं, हमको क्या करना है कि जो नेटवर्क है वो वापस से ड्रॉ करना है, रीड्रॉ दी नेटवर्क। ओके, नेटवर्क वापस से ड्रॉ करो, और उसके अंदर क्या करो, जो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो कैलकुलेट करो, और फिर से जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है या जो शेड्यूल है वो फिर से बनाओ। तो हम क्या करते हैं, ये वापस से नेटवर्क मैंने बना दिया। ओके, ये आपको बार बार बनाना पड़ेगा नेटवर्क। तो ये नेटवर्क मैंने बना दिया। ओके, इसके अंदर मैंने कौन सी एक्टिविटी को क्रैश किया है, एक्टिविटी बी को क्रैश किया है। इसका ओरिजिनल जो ड्यूरेशन था वो 6 दिन था, तो यहाँ पर 6 दिन से कितने पे ला लिया मैंने इसको, एक दिन से कम किया, इसके लिए इसका ड्यूरेशन हो गया 5 डेज। बराबर है, तो अब मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 5 दिन पे आ गया ना। तो पहला मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था कितना, 14 डेज था, तो मे बी अब वो 13 डेज हो जाएगा। बराबर है, तो मुझे क्या करना है, वापस से जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये क्रिटिकल पाथ पहला वाला जो है, तो वो 13 दिन का है। अब मुझे क्या करना है, वापस से एक क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट। भी कोई इफेक्ट नहीं गिरा, बट उसका भी ड्यूरेशन कितना है, 13 दिन है। तो यहाँ पर ए बी ई मतलब ये पहला पाथ भी क्रिटिकल पाथ है, और ये दूसरा पाथ भी यहाँ पर क्रिटिकल पाथ है, क्योंकि इन दोनों का ड्यूरेशन है विच इज द मैक्सिमम ऑफ दिस 3, ये दोनों का भी मैक्सिमम है। इसके लिए हमको यहाँ पर एक नया क्रिटिकल पाथ भी मिल गया है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही हमको ड्यूरेशन पता चलता है, कितना है ड्यूरेशन, 13। कोई भी साइड से जाओ आप, 13 पर ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे 13 डेज पे। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट कॉस्ट को क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ वापस से। तो ये है डायरेक्ट कॉस्ट, फिर से इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब हमने क्रैशिंग कर लिया है, तो क्रैश कॉस्ट भी हमको यहाँ पर लगेगी। तो डायरेक्ट कॉस्ट कितना है आपका, 8,000, जो कि कांस्टेंट रहने वाला है। उसके बाद क्या लगा आपको, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो इनटू गिवन इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है, 13 दिन हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है, 300, तो 13 इंटू 300 मतलब 3,900। तो ये कॉस्ट देखो, इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पर क्या होगी,
रिड्यूस हो गई है, दिख रहा है। पहले हमारा 4200 कुछ था मेरे हिसाब से, अब वो हो गया है 3900, बराबर। ओके, और उसके बाद में हमको क्रैश कॉस्ट भी लगने वाली है। क्रैश कॉस्ट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो जितने दिन से आपने उसको क्रैश किया है, जैसे कि यहाँ पर एक दिन से क्रैश किया है एक्टिविटी को, तो 1 इंटू जो कॉस्ट टाइम स्लोप है वो, मतलब एक दिन से क्रैश करने पर इसको कितना खर्चा बढ़ेगा क्रैशिंग का, 200 रुपए, तो ये 200 तो इंटू 200। ओके, और ये तीनों का समेशन हमको करना है, तो हमको मिल जाएगा प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो 8000 प्लस 3900 प्लस 200, तो ये हो गया हमारा 12100। हमारा पहला ओरिजिनल कॉस्ट था 12200, तो ये देखो कॉस्ट क्या हो गई यहाँ पर, कम हो गई है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि ये नेटवर्क को यहाँ पर क्रैश करेंगे। ये पहला क्रैशिंग हो गया, हमको ये क्रैशिंग कंटिन्यू करना है। ओके, सिंस यहाँ पर एक और क्रिटिकल पाथ हमको मिला है, तो अभी हमको जो भी क्रैशिंग करना है वो कैसा रहेगा, इन दोनों भी पाथ से क्रैशिंग करना पड़ेगा, हमको पैरेलल क्रैशिंग करना है अभी। ओके, तो कैसा रहता है, देखो ये नया पाथ हमको ऑब्टेन हो गया। ओके, अब ये पैरेलल क्रैशिंग कैसा रहता है, अब मैंने फाइंड क्रिटिकल पाथ आफ्टर एवरी क्रैशिंग, तो मैंने क्रिटिकल पाथ तो ढूंढ लिया। ओके, ये हमारा क्रिटिकल पाथ आ गया नया वाला, दिस इज आवर न्यू क्रिटिकल पाथ। अब हम जो भी क्रैशिंग करेंगे, जैसे इस एक्टिविटी को क्रैश किया था हमने, क्योंकि ये एक्टिविटी थी हमारे क्रिटिकल एक्टिविटी में। ओके, तो उसी तरीके से अब ये जो तीनों एक्टिविटीज है ए, डी और ई, तो ये डी भी अभी क्या है, हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी है। तो हमको जब भी क्रैशिंग करना है, तो इस एक्टिविटी डी को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सिंस नया पैरेलल पाथ इमर्ज हो चुका है हमारे नेटवर्क में, तो हमको अभी दोनों जगह पर क्या करना है, क्रैशिंग करना है। ओके, तो क्रैशिंग अभी कैसा करेंगे ये हम डिसाइड करते हैं। देखिए हमने ये डी को भी क्या किया है, यहाँ पर अभी कंसिडर किया है। ओके, तो अब ये हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड। ये मेथड क्या है, ये मेथड बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पैरेलल पाथ आपको हर एक नेटवर्क के अंदर आने वाला है, बहुत जगह पर ये आपको आएगा। सिंस ए भी क्रिटिकल एक्टिविटी है, बी भी क्रिटिकल एक्टिविटी है और डी भी क्रिटिकल एक्टिविटी बन गई है नई, तो अब ये तीनों भी एक्टिविटी में से हमको क्या करना पड़ेगा, ओके, हमको क्रैशिंग करना पड़ेगा। सिंस ये तीनों भी एक्टिविटी एक पैरेलल पाथ का हिस्सा है, दो पैरेलल पाथ्स का हिस्सा है, तो हमको कंसीडर करते वक्त तीनों को भी साइमल्टेनियसली कंसीडर करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग ओनली सिंगल एक्टिविटी। जैसे हम यहाँ पर कंसीडर करते थे ना कि ये जो जिसका ज्यादा है उस एक्टिविटी को क्रैश करो, अगर यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 400 है, तो हम जनरली क्या करते थे, इसको बी को सेलेक्ट करते थे और इसको क्रैश करते थे। तो वैसा नहीं है, अभी हमको इन तीनों एक्टिविटीज का पैरेलली विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब ये ई, ओके, ये दोनों, अब मैं मेथड आपको बता रहा हूँ कैसे सोचते हैं। तो ये ए बी ई जो क्रिटिकल पाथ है ऊपर वाला वो लिख लिया, ए डी ई वो भी मैंने लिख लिया। ओके, अब इसमें से ई ई तो कैंसिल हो जाते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्रैश हो ही नहीं सकते, तो इसके लिए हम इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ओके, अब बचे हमारा ए बी और ए डी। तो वेर एज अगर मैं ए को अगर सेलेक्ट करता हूँ क्रैशिंग के लिए, ओके, फॉर एग्जांपल ए अगर हम सेलेक्ट करते हैं क्रैशिंग के लिए, अभी इसके बारे में मत सोचो फिलहाल, अगर ए को मैं लेता हूँ क्रैशिंग के लिए, तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा और कितने इससे मेरी एक्टिविटी का क्रैशिंग होगा। अगर ए लेता हूं, अगर ए को क्रैश करता हूं, ये ए तो दोनों का हिस्सा है, मतलब ये क्या करेंगी, ए अगर क्रैश हम करें तो ये दोनों भी पाथ का ड्यूरेशन क्या करेगी, कम कर देगी, बराबर है ना, क्योंकि ए दोनों भी एक्टिविटी का, दोनों भी क्रिटिकल पाथ का क्रिटिकल एक्टिविटी है। ओके, ओके, बट अगर ए को मैं क्रैश करता हूं तो मुझे कॉस्ट टाइम स्लोप देखना है, कितना है, 1000 रुपीज, कितना है, 1000 रुपीज, मतलब ए क्रैश करे तो हमारा 1000 रुपये खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एक दिन के लिए अगर क्रैश करे तो। ओके, बट यहाँ पर दो और एक्टिविटीज प्रेजेंट है, कौन सी एक्टिविटी बी और डी, और ये दोनों भी एक्टिविटी एक दूसरे को कैसी है, पैरेलल है, कैसी है, पैरेलल। ओके, तो अगर मैंने बी को कंसीडर किया क्रैशिंग के लिए, तो मुझे साथ ही साथ में इस पैरेलल एक्टिविटी डी को भी क्रैश करना पड़ेगा, बिकॉज दीज टू नेटवर्क्स आर
पैरेलल। ओके, तो अगर मैं ए को क्रैश करने का सोचता हूँ तो मुझे कितना खर्चा लगेगा, हमको अब ये खर्चा जो है क्रैश कॉस्ट का क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ए को कितना खर्चा लगेगा, 1000 रुपए, वेर एज बी और डी, अब ये बी और डी क्रैश होंगे तो साथ में क्रैश होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, एक दूसरे से पैरेलल है, तो साथ में क्रैश होंगे वरना क्रैश नहीं होंगे। ओके, तो ये बी और डी मिलाकर कितना खर्चा लगेगा, तो बी को लगता है 200 रुपए, क्रैश कॉस्ट स्लोप में 200 रुपए है, और डी को लगता है 400 रुपए। तो ये दोनों भी मिलके अगर मैं एक साथ क्रैश करता हूँ तो मुझे खर्चा कितना आएगा, टोटल खर्चा आएगा 600 रुपए। अब मैं कंपेयर करूंगा इस खर्चे को ए के साथ में। तो ए अगर सिंपली क्रैश करते हैं एक एक्टिविटी तो 1000 रुपए तो लग जाएंगे, और बी और डी अगर करते हैं तो 600 रुपए लगेंगे। तो हम कौन सा सेलेक्ट करने वाले हैं, इसमें से जो स्मॉलेस्ट रहेगा उसको हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फॉर वॉट, फॉर क्रैशिंग। ओके, फॉर व्हाट, फॉर क्रैशिंग। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी डी को क्रैश करेंगे बाय 1 डे। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया ये एक्टिविटी डी को भी, तो बी तो सेलेक्टेड है तो हमने डी को भी सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक्टिविटी बी और डी इनको दोनों को एक साथ एक दिन से क्रैश करेंगे। अब एक दिन से क्रैश करेंगे मतलब क्या, एक दिन से इसके लिए करना है कि ताकि आप जो पॉइंट है जो ढूंढ रहे हैं हम पॉइंट, वो मिस ना हो जाए। तो मैंने ये 5 दिन था तो ये नया नेटवर्क बना दिया, ये क्रैशिंग हो चुका है, मतलब क्या है, ये नया नेटवर्क बनाओ। सिर्फ यहाँ पर 5 दिन था पहले वाले डायग्राम में, देखो यहाँ पर 5 दिन था तो इसको हमने क्रैश किया, तो क्रैशिंग के बाद कितना बचेगा इसका, 5 दिन में से एक कम हो जाएगा, 4 दिन। और यहाँ पर भी 5 दिन था तो ये भी हो गया हमारा 4 दिन। तो ये कहाँ तक ले जा सकते हैं, जब तक ये दोनों एक तरीके नहीं हो जाते वहां तक आप क्या कर सकते हैं, क्रैश कर सकते हैं। ओके, सिंस क्रैशिंग हो चुकी है, पाथ वापस से ढूंढो, टोटल पाथ कितने हैं, टोटल पाथ हमारे पास 3 है तो वो तीनों की तीनों पाथ लिखो और उनका ड्यूरेशन लिखो। तो अब हमारा ड्यूरेशन क्या हो जाता है, तो ये 5 + 4 9 + 3 12, तो ये दोनों भी जो पाथ थे इनका ड्यूरेशन था 13 13 था, तो ये एक एक दिन से क्या हो गया, दोनों भी जगह पर कम हो गया। तो हमारा ड्यूरेशन अभी हो गया है 12 डेज 12 डेज। ओके, बट अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो ACE ये जो तीसरा पाथ है इसका भी ड्यूरेशन कितना है, 12 डेज है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने एक्टिविटी को क्रैश किया बी और डी को पैरेलली, तो हमारे पास में एक और नया क्रिटिकल पाथ जो कि इन दोनों पाथ को पैरेलल है क्रिएट हो गया। ओके, तो अब हम जो भी क्रैशिंग करेंगे सिर्फ ये दो पाथ में नहीं करेंगे। तो अब पहले जैसे दो पाथ आ गए थे तो दोनों में करते थे क्रैशिंग, तो अब हम क्या करेंगे, तीनों भी पाथ में क्रैशिंग करेंगे। ओके, तो वो करने से पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, क्रैशिंग हो चुकी है तो खर्चा बढ़ गया है कि कम हो गया है ये हमको पता करना है। तो वो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट भी निकालेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हम निकालेंगे। सो प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस क्रैश कॉस्ट। तो ये फिक्स वाला डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट अभी कितना हो गया है, ड्यूरेशन 12 दिन हो गया है, तो 12 इंटू ये 300, 12 3 36, तो 3600 रुपये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्रैश कॉस्ट अभी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, यहाँ पर ध्यान दो। क्रैश कॉस्ट क्या होती है हमारी, कि जो पहली क्रैश कॉस्ट है ओल्ड वाली, जो आपने एक बार कर लिया है ना क्रैशिंग 200 रुपये डाल के, तो वो भी आपको यहाँ पर क्या करना है, कंसिडर करना है। तो ये 200 प्लस जो भी नया क्रैश का खर्चा आया है वो खर्चा, मतलब आपने क्या किया, ये दोनों एक्टिविटीज को एक साथ क्रैश किया तो कितना आया आपको कॉस्टिंग, 600 रुपीज फॉर क्रैशिंग 1 डे। तो ये 600 प्लस ये 200 मतलब कितने हो जाएंगे आपके, 800 rupees. Okay, so this is your new crash cost, crash day into cost slope. New crash cost is 1 into 200 plus 400, 600 rupees। और ये हमारा ओल्ड क्रैश कॉस्ट, मतलब ये आपका पूरा टोटल कॉस्ट कितना लग गया क्रैशिंग का, 800 रुपए। ओके, तो ये 8000 प्लस 3 600 प्लस ये सॉरी यहाँ पर 800 रुपए है, प्लीज इसको कंसिडर कर लेना, दिस इज 800 रुपीज। ओके, सो इट इज 12,400 रुपीज क्या होता है यहाँ पर वो आता है, दिस इज नॉट 600 रुपीज, दिस इज योर 800 रुपीज। ओके, सो हमारा कॉस्टिंग आता है 12,400। ओके, चलो, तो अगला हमने क्रैशिंग कर लिया है,
हमारे पास में एक और पाथ आ गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस पाथ को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो जब भी मैं बोल रहा हूँ क्रैशिंग हो रही है, तभी आपको ये नेटवर्क ड्रॉ करना है। ये जो पार्ट हम कर रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये डिसाइडिंग एक्टिविटीज, ये आपको वहीं पर ही करना है, उसी नेटवर्क के बाजू में। हमारे पास में जगह नहीं, इसके लिए हम अलग अलग स्लाइड में कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको इसके नीचे ही करना है, आपको वापस से नेटवर्क इसके लिए ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप क्रैश करते हैं उसके बाद ही नेटवर्क आपको बनाना है। Okay. Now another parallel path has emerged, so crashing activities concurrently from this path also. तीनों भी पाथ में से क्या करना है, हमको एक्टिविटी क्रैश करना है। ये तीनों भी पाथ आगे बन गए, ए बी ई भी आ गया हमारे पे क्रिटिकल पाथ में, ए सी ई भी आ गया, और ए डी ई भी हमारा क्रिटिकल पाथ बन गया। ओके, सो डिसाइडिंग एक्टिविटीज टू बी क्रैश्ड पैरेलली। पैरेलल कैसे क्रैश करेंगे, तो ई तो क्रैश हो नहीं सकती भैया, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो परमानेंटली क्रैश हो चुकी है। ओके, अब अगर हम ए को क्रैश करते हैं, तो ए को जब क्रैश करेंगे तो ये तीनों जगह से क्या करेगा, एक्टिविटी का ड्यूरेशन कम करेगा। ओके, अगर ए को एक दिन से क्रैश किया, तो ये तीनों का भी ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, एक दिन से कम होगा, मतलब ये 11-11 हो जाएगा। ओके, पर इसके लिए हमको कॉस्ट भी कंसिडर करना है। और अगर मैं बी को कंसिडर करता हूँ क्रैश करने का, सिंस बी सी और डी ये तीनों भी एक्टिविटी कैसी है, एक दूसरे को पैरेलल है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी सी डी को एक साथ क्रैश करना पड़ेगा। अगर करना है तो बी सी डी को एक साथ क्रैश करना पड़ेगा। तो हम कंपेयर करेंगे हमारे प्राइसिंग का, ए को अगर क्रैश करते हैं तो कितना खर्चा आएगा, 1000 रुपए, और वही बी सी और डी इनको साथ में क्रैश करते हैं तो कितना खर्चा आएगा, 200, 200 प्लस 800 प्लस 400। ओके, सो आपको 1400 रुपये लग जाएंगे। तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जो कम वाला है, तो ए को हम क्या करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और क्रैश ए हम क्या करने वाले हैं, एक्टिविटी करने वाले हैं। तो क्रैशिंग एक्टिविटी ए, क्रैश एक्टिविटी ए बाय 1 डे, पैरेलली आपको क्रैश करना है, ध्यान में रखो। ओके, सो हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर पहले वाले इसमें हमने देखे, इसका कितना ड्यूरेशन था, 5 था ओरिजिनल, जब मैंने क्रैश कर दिया उसको तो इसका ड्यूरेशन हो गया 4। तो आपको जब भी नया क्रैश नेटवर्क बनाना है, नया क्रैश हुआ नेटवर्क, तो आपको ये वैल्यूज क्या करते जाना है, चेंज करना है। इन वैल्यूज के लिए ही आपको क्या करना है, नेटवर्क न्यू बनाना है। ओके, सो ये चेंज हो गया है, देखो ये क्रैश हो गया। तो अब ये इसकी क्रैशिंग वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, 4 तक क्रैश कर सकते, 4 तक आ गया। ओके, सो अब क्रैश हो गया है, क्रैश हो गया तो वापस से नेटवर्क बनाओ, वापस से नेटवर्क बनाओ तो वापस से पाथ ढूंढो, तो वापस से पाथ ढूंढो, तो सभी पाथ में आपका वैल्यू चेक करो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का। तो जैसे यहाँ पर 12 थी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अभी हो गई हमारी एक दिन से कम, ये हो गई हमारी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 11 दिन। ओके, तो 11 दिन हो गई, तो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट भी चेंज हो गया होगा। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट वापस से कैलकुलेट करो, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, और हमारा क्रैश कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसा निकलता है, तो जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो मल्टीप्लाइड बाय इनडायरेक्ट कॉस्ट गिवन वाला, तो 11 इंटू 300, तो ये हो गया 3300 हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, इसके बाद आ गया क्रैश कॉस्ट, तो पुराना क्रैश कॉस्ट कितना लगा था भैया वो, और ये नया कितना, यस, तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि जो कॉस्ट है वो वापस से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं इसमें नेटवर्क में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा कि एक्टिविटी ए को जब क्रैश किया, तो इस एक्टिविटी ए को क्रैश करने पर क्या हो गया, उसका जो क्रैशिंग वैल्यू है वो रीच हो गई है।
तो हमने क्या किया, इसको आगे क्रैश नहीं हो सकता ये बताने के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको क्रॉस ऑफ कर देना। सो ए कैन नॉट बी क्रैश्ड फर्दर। अब क्रैश होंगे तो कौन से होंगे, बी, सी और डी ही क्रैश होंगे। ओके, अब इसके बाद सिंस हमारे तीनों भी पाथ अभी भी क्रिटिकल पाथ हैं, तो ये क्रिटिकल पाथ पर फिर से विचार करते हैं कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी क्रैश की जा सकती है। अब हम ये तीनों भी पाथ वापस से लिखेंगे, इस पे विचार करेंगे। डिसाइडिंग एक्टिविटीज टू बी क्रैश्ड, ई क्रैश नहीं हो सकती, ए क्रैश नहीं हो सकता, तो बी क्रैश हो सकता है। बी अगर क्रैश होगा या सी अगर क्रैश होगा या डी अगर क्रैश होगा तो किसके साथ क्रैश होगा, बाकी सभी एक्टिविटीज के साथ क्रैश होगा। क्यों एक साथ क्रैश होगा, तो क्योंकि वो तीनों भी एक्टिविटीज पैरेलल हैं। अगर मैं सिर्फ बी को क्रैश करता हूं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बी को क्रैश करने पर मेरा एक पाथ का जो ड्यूरेशन है वो ही कम होगा, वेयर एज बचे हुए पाथ का ड्यूरेशन एज इट इज 11 दिन रहेगा। तो ये एज इट इज अगर 11 दिन रहेगा तो मेरे प्रोजेक्ट के कॉस्ट पे किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगले वाले ड्यूरेशन के लिए मैं क्या कंसिडर करूंगा, वापस से 11 ही कंसिडर करूंगा। वेयर एज क्रैशिंग की वजह से खर्चा भी बढ़ जाएगा और ड्यूरेशन भी कम नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए हम जब भी क्रैश करेंगे क्रिटिकल पाथ बढ़ने पर, तो हम पैरेलल ही क्रैश करने वाले हैं। ओके, तो ए क्रैश नहीं हो सकता, इसके लिए हम बी क्रैश करेंगे। तो बी को क्रैश, बी सी डी एक साथ क्रैश करेंगे तो बी सी डी का कितना खर्चा आता है, 1400 रुपए। 200 प्लस 800, 1000 प्लस 400, 1400। तो हम क्या करेंगे, अब सी को भी क्रैश करने वाले हैं। ओके, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, बी को भी टिक किया और इधर से क्रैश के लिए एंटर भी कर दिया। ओके, ई और ए जो है तो ऑलरेडी क्रॉस ऑफ हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर हम क्रैश कर रहे हैं बीसीडी को एक साथ। ओके, तो बीसीडी को जब हमने क्रैश किया तो हमने नेटवर्क वापस से ड्रॉ किया है। सो बी हैज बीन क्रैश्ड अगेन। सो दिस वाज प्रीवियसली 4, ये पहले 4 था, अभी कितना हो गया, 3 हो गया। दिस वाज प्रीवियसली 4, तो ये अभी कितना हो गया, 3 हो गया। सिंस दिस वन हैज रीच्ड इट्स क्रैश्ड वैल्यू, ये क्रैशिंग सैचुरेशन पहुंच चुका है, मतलब ये 4 से 3 तक क्रैश कर सकते हैं, तो ये 3 पहुंच गया। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको सी को क्रॉस ऑफ कर दिया। साथ ही साथ में डी भी उसकी क्रैश वैल्यू पर पहुंच चुका है, ये पहले 4 था अब 3 हो गया। अब ये 3 और 3 सरीके हो गया, मतलब ये क्रैश वैल्यू पर है, तो इसके लिए डी को भी मैंने क्या कर दिया, क्रॉस ऑफ कर दिया। तो पॉसिबली इसके बाद कोई भी क्रैशिंग नहीं होगा। अब सिर्फ इसका एक क्रैशिंग बाकी है, तो अगर इसको क्रैश करते हैं तो सिर्फ कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि इसके साथ हमको क्या करना पड़ता है, बाकियों को भी क्रैश करना पड़ता है। सो दिस इज योर फाइनल क्रैश्ड नेटवर्क, जिसका ड्यूरेशन है 10 डेज, 10 डेज। ओके, ये 11 था पहले, अभी 10 हो गया। एक से क्रैश किया हमने, एक दिन से क्रैश किया। फिर से कॉस्ट निकालेंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लस क्रैश कॉस्ट 8000, इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगा 10, नया ड्यूरेशन इनटू 300, गिवन इनडायरेक्ट कॉस्ट 3000 रुपीज आ गई। ओके, अब क्रैश कॉस्ट, ओल्ड क्रैश कॉस्ट प्लस न्यू क्रैश कॉस्ट। ओल्ड कितनी थी, ओल्ड था हमारा 1800 रुपए लगे थे पिछले क्रैशिंग में, पिछले क्रैशिंग तक। अभी हमको कितने लगे, 1400 रुपए लगे। पिछले क्रैशिंग तक हमको 1800 लगे, अब ये कितने लग गए नए, 1400, क्योंकि हमने बी, सी और डी एक साथ क्रैश किए हैं। ओके, तो हमारा नया प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया है 8000 प्लस 3000 प्लस 3200, क्योंकि इनका एडिशन कितना है, 3200। और ये हमारा नया फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 14200। देखिए ये आगे बढ़ते ही जा रहा है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका जो ओरिजिनल पहला जो कॉस्ट आपने शुरुआत में लिया था प्रोजेक्ट कॉस्ट, वो जैसे ही कम हो गया, उसके अगले वाले पॉइंट पर वापस से हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर वो बढ़ रहा है तो ये समझ लो यहाँ से क्या होने वाला है, आगे वापस से बढ़ने वाला है। चांसेस कम है कि इसके आगे कम होगा प्रोजेक्ट कॉस्ट। ओके, तो आप चाहे तो आप एक स्टेप पहले ही रुक सकते हैं, मतलब ये स्टेप अगर आपने छोड़ भी दी रहती थी और टेबल बना लेते थे इसके बाद वाला, तो भी चल जाता था। ओके, तो ये हमको ध्यान रखने के लिए क्या करना है, ये हर बार प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, अब ये फाइनल क्रैशिंग हो चुकी है, ये नेटवर्क फाइनली क्रैश्ड हो गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे आखिरी में हमारा एक कॉस्ट टेबल बनाते हैं। तो आप चाहे तो ये टेबल नहीं भी बना सकते, और क्या कर सकते हैं, ये जो लिखी हुई कॉस्ट है ना,
इसके बेसिस पर आप डायरेक्टली कॉस्ट ट्रेड ऑफ लिख सकते हैं, टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ लिख सकते हैं। बट अगर आप टेबल के मदद से लिख रहे हैं तो आप चाहे तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, बट दिस इज गुड क्योंकि ये आपको कंटिन्यूअसली बताते रहता है कि कॉस्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। ओके, सो ये कॉस्ट टेबल हम लिखते हैं। सो दिस इज योर कॉस्ट टेबल। इसके अंदर ड्यूरेशन लिखा है प्रोजेक्ट का, तो 14 दिन पहला ड्यूरेशन था, दूसरा 13, दूसरा उसके बाद का 12, 11 और 10। तो नॉर्मल कॉस्ट तो कांस्टेंट है। क्रैश कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। 200 पहले हमको 0 लगी क्योंकि कोई क्रैशिंग नहीं थी, उसके बाद 200 लगी, फिर ये 200 यहाँ पर पहले वाली, प्लस 12 के लिए जो करे आपने क्रैशिंग उसको 600 लगा, तो ये दोनों 200 प्लस 600 वापस से यहाँ पर एडिशन हो गया 800, और नए के लिए आपको लगी 1000, मतलब ये कुल मिला के आपको 1800 लगी। ये कुल मिला के 1800 लगी हुई कॉस्ट यहाँ पर लिख लिया, और जो नहीं लगी वो 1400 यहाँ पर लिख लिया। तो ऐसे कुछ आपको फाइनली 3200 क्रैश कॉस्ट लगा है। साथ ही साथ में इनडायरेक्ट कॉस्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो पहले 4200 था, फिर 3900 मतलब कम हुआ, फिर 3600 और कम हुआ, 3300 कम, 3000 और कम हुआ। बट टोटल प्रोजेक्ट पर जो इम्पैक्ट गिरा है इन कॉस्ट का वो कुछ अलग बताता है। 12200 ओरिजिनल था जब क्रैशिंग नहीं किए, 12100 हो गया मतलब कम हुआ। सो 100 रुपीज आपने यहाँ पर बचा लिए बाय क्रैशिंग 1 डे। ओके, उसमें आपने 200 रुपये गवाए, पर 100 रुपये क्या हो गए यहाँ पे बच गए हैं, मतलब टोटली आप 100 रुपये यहाँ पर बचा रहे हैं। उसके बाद की क्रैशिंग अगर आप करते हैं, मतलब 12 दिन पे अगर प्रोजेक्ट को लाते हैं, तो आपको कितना लगेगा, 12400 लगेगा। मतलब आप ओरिजिनली जितना लगा रहे थे उससे 200 रुपये ज्यादा जाने वाले हैं। उसके बाद में 11 दिन अगर आप करते हैं तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा 13100। तो आपका ओरिजिनल 12200 से आप क्या कर रहे हैं, कुछ कॉस्टिंग बढ़ा दे रहे हैं, और 10 के लिए और कॉस्टिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो इट इज नॉट फिजिबल टू गो फॉर crashing up to 12 days, 11 days or 10 days. It is good to crash up to 13 days, मतलब 13 दिन तक आप क्या कर दो, उसको क्रैश कर दो पूरे प्रोजेक्ट को, तो आपका फायदा होगा। उसके बाद नुकसान ही होने वाला है। नुकसान मतलब क्या, कॉस्टिंग बढ़ेगा। आप अगर चाहे कॉस्टिंग का कोई आपको फर्क नहीं गिरता होगा, आपको ड्यूरेशन कम करना है तो आप कर सकते हैं। बट जो ऑप्टिमम पॉइंट है, जो ऑप्टिमम बोलते हैं ना, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, जो मिडल रेंज में है, या जो दोनों का मिक्स है, जैसे यहाँ पर ड्यूरेशन भी कम हो गया और कॉस्ट भी क्या हो गया, कम हो गया, तो ये पॉइंट रहता है हमारा टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ पॉइंट। देयरफॉर टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट एट 13 डेज। 13वें दिन पर वो हमको मिल रहा है। कब, जब आप एक्टिविटी बी को क्रैश करते हैं बाय 1 डे। अगर आप सोचो, अब सोचो जरा, अगर आप बी एक्टिविटी को एक साथ 4 दिन से क्रैश करते थे तो ये क्रैश कॉस्ट कुछ बढ़ जाती थी, और ये जो 12100 पॉइंट मिलने वाला था आपको, ये पॉइंट मिलता ही नहीं था, आप ये मिस कर देते थे। सो दैट्स वाई ये पॉइंट मिलना चाहिए हमको। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 एक्टिविटी को क्रैश करते हैं। हर बार एक ही एक्टिविटी, सॉरी, हर बार जो एक्टिविटी क्रैश करेंगे आप, फिर वो मल्टीपल रहो, कितनी भी रहो, एक दिन से ही करना है। सो टोटल मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 12,100। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अगर मैं कॉस्ट इस साइड में लिखूं तो 12100 यहाँ पर आएगा, 12200 यहाँ पर, 12400 यहाँ पे, 13100 यहाँ पे, 14200 यहाँ पर, और ड्यूरेशन यहाँ पर आएगा 14, 13, 12, 11, 10। तो पहले तो ऊपर रहेगा वैल्यू, तो स्लोली स्लोली नीचे आ चुका है, और नीचे आने के बाद में वापस से क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो ये जो जो पॉइंट मुझे सबसे लोएस्ट पॉइंट मिला है यहाँ पर, ये है मेरा टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ। ओके, और दिस इज इट, दिस इज हाउ यू क्रैश योर नेटवर्क। इसी के साथ हमारा ये नेटवर्क मॉडल्स वाला पार्ट जो है वो खत्म होता है, और क्रैशिंग का भी पार्ट खत्म होता है। ओके, चलो ठीक है। सो स्टे एट होम, स्टॉप गैदरिंग, follow the instructions given by officials, stay safe, or let's be